Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome today. Today we have Effie with us. She has joined us newly and we are going to start this lecture from beginning end. So, Effie, how do you do? I am fine. Okay. Thank you. How about you? I'm good, thanks. आज का हमारा जो लेक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि हमने आपको सबसे पहले तो कुछ ग्रीटिंग्स की चीज़ें बतानी है कि किसी को सलाम दुआ हाल चाल कैसे बताना और पूछना है. होपफुली आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे. सो आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, sir. Okay. The first thing is that how to greet someone when you haven't seen him or her for a long time. यानी आप जब उसको लंबे अरसे तक नहीं मिले उसको आप किस तरह से ग्रीट करते हैं, मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं. पहला फ़िक्र है लॉन्ग टाइम नो सी. इसको रीड आफ्टर कीजिए, रिपीट आफ्टर कीजिए. जब मैं आपको कहूँ रिपीट आफ्टर तो आप मेरे साथ रीड करेंगे. ओके? जी. लॉन्ग टाइम नो सी. लॉन्ग टाइम नो सी. Long time no see. ओके, जिसका मतलब है बड़े अरसे बाद मिले हैं, इतने दिनों मिले नहीं. नो सी, सी का मतलब होता है मिलना. नो सी नहीं मिले. सो लॉन्ग टाइम नो सी, कितना अरसा हो गया हम मिले नहीं. ऑलराइट, आप नज़र नहीं आए. इट्स बीन अ वाइल. आ वाइल का मतलब होता है कुछ अरसा हुआ है. ये जो वाइल है आ वाइल, इसका मतलब होता है थोड़ी देर. जैसे हम कहते हैं वेट अ वाइल. क्या कहते हैं? वेट अ Wait वाइल. a जी, हम क्या कहते हैं? wait a while. जिसका मतलब है थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ी देर. सो इट्स बिन अ वाइल यानी कुछ अरसा हुआ है. या फिर इट इज़ बिन या इट हैज़ बिन अ लॉन्ग टाइम. क्या? It is been yeah it has been a long time. जी, इट हैज़ बिन अ लॉन्ग टाइम यानी एक लंबा अरसा हुआ है मिले हुए को. इट हैज़ बिन सच अ लॉन्ग टाइम. It has been such a long time. इट हैज़ बिन टू लॉन्ग. It has been too long. आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगैन. I am so happy to see you again. ओके, वाओ, इट्स सो गुड टू सी यू अगैन. Wow, it's so good to see you again. Okay, Effie, what have you Yes, been sir. up to? What? What have you been up to? Okay, जब इस तरह की क्वेश्चनिंग आए तो इसका मतलब यही होता है कि क्या चलता रहा है, क्या करते रहे हो. क्या मीनिंग है? क्या चलता रहा है, क्या करते रहे हो. उसकी इंग्लिश क्या है? What have you been up to? Up to. For example, I have been planning for traveling outside, I have been sketching out for schooling, I have been making structure, I've been checking out my timetable. Whatever you're doing, you can define in this answering when I question you, what have you been up to? Or you can say it was nothing but just our routine stuff. जी. It was nothing but just our routine stuff. Now, Amna, me, जी. you and our audience, all of us are going to, practice it. So let's start from beginning. Long time no see. Long time no see. It's been a while. It's been a while. It has been a long time. It has been a long time. It's been such a long time. It's been such a long time. It has been too long. It has been too long. I'm so happy to see you again. I am so happy to see you again. यहाँ पे एक हल्का सा हिंट देता हूँ. यहाँ पे अगर आप यू को इग्नोर कर दें, ऐसे कर दें, तो लफ्ज़ क्या बनता है? I'm so happy to see you again. I am so happy to see you again. See you again. See ya again. Again नहीं, see ya. See Ya. see ya Again. again. I'm See ya so again. I'm so happy to see you again.
I am so happy to see ya again. See ya again. अगेन नहीं, गेन. Again. See ya again. Yeah, I am so happy to see ya again. that's right. Wow, it's so good to see you again. See ya again. Okay. What have you been up to? Have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? That's great, Effie. So next, here we have some useful responses when we reply someone, like someone is asking you, how are you doing? जब कोई पूछता है Effie, जब कोई आपसे पूछता है कि how are you doing? So how would you reply? Your reply should be, I'm doing very well, thank you, and you. I'm doing very well, thank you, and you? How are you doing? I am doing very well, thank you, and you? Okay, let's go to audience. How are you doing? I'm doing very well, thank you, and you? Okay, how do you do? I am fine, thank you. Let's give a chance to audience. How do you do? I'm fine, thank you. How are you? Great, thanks. How are you? Great, thanks, how are you? Not bad. You? ये भी आप रिप्लाई दे सकते हैं. Couldn't be better. How about you? Now repeat please. Not bad. Not bad. You? Not bad. You? Couldn't be better. Couldn't be better. How about you? How about you? Okay. Wonderful, thank you. Wonderful, thank you. These all replies you can make during when you are going to respond someone. They are asking you, how are you? How do you do? How have you been? And one thing more, they can also ask you, जब वो पूछते हैं what are you up to, या फिर what have you been up to, ये वाला what have you been up to or what are you up to, you can reply wonderful, thank you, couldn't be better. Okay. Okay. Now let's move to a grammar section. Effie, जी सर. जैसे कि आपने हमारे पहले भी ऑनलाइन लेक्चर में सुना होगा कि फ़िक्रे के स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें पे जोर दिया जाता है. There are 3 things. They are important one in a sentence. Number 1, subject, verb, object. और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम अगर दूसरे सिरे पे ले जाएं, हम बात करें वर्ब की. वर्ब एक ऐसी इम्पोर्टेंस रखती है कि हमें वर्ब से डिफरेंस का पता चलता है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से क्या डिफरेंस हो रहा है. जैसे कि आप देखती हैं एफी, इसको रीड कीजिएगा. I like apples. You peel apples. They eat apples. ओके, they eat apple. इसमें से 3 चीज़ें कौन सी डिफरेंट हैं? Like, peel, eat. ओके, लाइक, पील, ईट. इनमें हमें पता चल रहा है कि काम मुख्तलिफ हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं? काम मुख्तलिफ हो रहे हैं. तो ये अगर मैं आपको इतना सा बोलूँ कि सब्जेक्ट याद कर लीजिए, तो आप क्या याद करेंगी? I, we, you, they, he, she, it, name. दैट्स ग्रेट. अगर आपको सब्जेक्ट्स आते हैं आपका वो इशू नहीं रहता. अब आपको ऑब्जेक्ट्स के कुछ नेम आते हैं, एप्पल्स, मैंगो, ट्री, मंकी, मोबाइल, वट एवर द थिंग इट इज़. बट अब उनके साथ करना क्या होता है, वो चीज़ें आपको 4 फॉर्म में इस्तेमाल करनी होती हैं. अगर तो आपने उसको खाना है या किसी को ऑफ़र करना है या किसी को आपने पसंद करना है, वो आपको उसकी इंग्लिश जहन में रखनी होगी. उसको वर्ब कहा जाता है. तो वर्ब के बारे में आपको मज़ीद एक्सपेंड करता चलूँ कि वर्ब 2 चीज़ों का बताती है. कितनी चीज़ों का? 2 चीज़ों का. काम क्या हो रहा है, काम कब हो रहा है. व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हेन गोइंग ऑन. क्या हो रहा है, कब हो रहा है. व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हेन इज़ गोइंग ऑन. फ़िक्रे में हो क्या रहा है, ईट, यानी खाया जा रहा है.
अच्छा, कब हो रहा है? अगर तुम्हें कहूँ ईट, तो ये मौजूदा दौर में होगा, एट गुज़रे हुए दौर में होगा, और ईटन पार्टिसिपल दौर में होगा। तो ये तीन चार फार्म्स की हालतों में एक ही वर्ब को हम मुख्तलिफ़ फ़िक्रों में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहला फ़िक्रा हमें बताता है आई ईट एन एप्पल। इसमें पहली फॉर्म है आई एट टू एप्पल, दूसरी फॉर्म आई हैव ईटन टू एप्पल्स, तीसरी फॉर्म। लेकिन क्या चीज़ है जो चेंज नहीं हो रही? Subject and object. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आर द सेम। ओके, क्या चीज़ है जो चेंज हो रही है? Verb. और ज़माने भी चेंज हो रहे हैं। ठीक. क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि वर्ब्स चेंज हो रही हैं, फॉर्म्स चेंज हो रही हैं। वर्ब सेम है, ईट ही है, खाना, मगर तीनों हालतों में मुख्तलिफ है। तो इसी चीज़ की लर्निंग को इंग्लिश टेंसेस कहा जाता है। अगर आप इस पे महारत रखती हैं तो आप अच्छी इंग्लिश स्पीकर बन सकती हैं, आपकी स्पीच अच्छी हो सकती है, आपकी राइटिंग अच्छी हो सकती है, लिसनिंग अच्छी हो सकती है। तो ये आपके लिए एक पैराग्राफ था आमना, इफ़ यू कुड रीड इट फॉर मी प्लीज़। I go to school. I also went to school yesterday. I had taken tea. I also went to school yesterday. I also went to school yesterday. I had taken tea over there. I was enjoying at free time. Right now I am enjoying again with my friends. I have taken tea already. Okay, the first thing that I'm going to tell you here, this is go. और पहली फॉर्म से हमें पता चला कि मैं आता जाता रहता हूँ या आती जाती। यहाँ पे went, मैं गया, यानी went से पता चला मैं गया। यहाँ पे लिखा हुआ है taken, जिससे पता चला कि मैं जा चुका हूँ या मैं पी चुका हूँ। taken के बाद क्या किया, मतलब वो मैं कर चुका, जैसे टी, मैंने चाय ले चुका हूँ, पी चुका हूँ। enjoying फोर्थ फॉर्म है, ing है ऑफ कोर्स। तो ये हमें क्या बता रही है कि कोई काम जारी हो रहा है, काम जारी है। तीन वर्ब्स हैं तीनों फॉर्म्स, चारों फॉर्म्स में, गो, वेंट, टेकन, इंजॉइंग। आपको पता होना चाहिए अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो उससे क्या पता चलता है, रूटीन हो रही है, यानी आता जाता। यानी आई गो टू स्कूल का क्या मतलब बनेगा? मैं स्कूल जाता हूँ। आई आल्सो वेंट टू स्कूल, इससे क्या पता चलेगा? मैं स्कूल गया था। ओके, मैं गया था। टेकन, पी चुका हूँ। पी चुका हूँ। अगर हूँ कहेंगे तो फिर यहाँ पे हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर पी चुका था तो फिर हैड का। ओके। इंजॉइंग, लुत्फ अंदोज हो रहा। अगर हो रहा था तो फिर वास। अगर हो रहा हूँ तो एम। बहरहाल जब हम हेल्पिंग वर्ब्स का भी इस्तेमाल करेंगे, अभी तो बेसिक चल रहा है। राइट नाउ आई एम इंजॉइंग अगैन, यहाँ पे फिर फोर्थ फॉर्म आ गई। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आमना, एफी वो चीज़ ये है, ये भी इंजॉइंग लिखा हुआ है, ये भी इंजॉइंग लिखा हुआ है, लेकिन इस इंजॉइंग में लिखा हुआ है कि मैं महसूस हो रहा था, लुत्फ़ उठा रहा था। और यहाँ पे इंजॉइंग बता रहा है कि मैं लुत्फ़ उठा रहा हूँ। तो यहाँ पे लुत्फ़ उठा रहा हूँ, यहाँ पे लुत्फ़ उठा रहा था। कैसे पता चला? वास और एम से। दैट्स ग्रेट, वास और एम से। तो ये चीज़ें भी माइनर सी हैं जो याद रखने वाली हैं। तो बहरहाल पता किस तरह से चल रहा है ज़माने बदलने का, वर्ब से। आई ईट एन एप्पल, आई एट टू एप्पल्स। आई ईट एन एप्पल का क्या मतलब है? मैं सेब खाता हूँ। ठीक हो गया। आई एट टू एप्पल्स, मैंने 2 सेब खाए। ओके। आई ईटन 2 एप्पल्स, मैं 2 सेब खा चुकी हूँ। हाँ, कैसे पता चला? थर्ड फॉर्म से। थर्ड फॉर्म से पता चला, वेरी सिंपल। और सेकंड फॉर्म से पता चला कि खाए, और फर्स्ट फॉर्म से पता चला कि खाता हूँ। ये मेरी आदत है या मैं हर रोज़ खाता हूँ, एवरीडे लगा दिया, डेली लगा दिया। जब आपने बात करनी हो कि मैं यहाँ बैठती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सेब खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं रोटी के बाद पानी पीता हूँ, मैं रोटी से पहले पानी पीता हूँ, मैं खाने से पहले। तो जो कुछ आपको कहना वो आपको फर्स्ट फॉर्म में बयान करना है, अपनी आदत, अपनी रूटीन, कोई शिकायत वगैरह।
तो सेकंड फॉर्म में आप अपनी वो स्टोरी, और मोस्टली जितनी भी स्टोरीज़ हैं या मज़ामीन हैं या किसी की भी कोई भी सवाने उम्री या किसी के बारे में गुज़रे लम्हात बयान करना होता है, यादाश्त बयान करनी होती है, तो वो सेकंड फॉर्म में होती है। जैसे ही सैट देयर, द डॉग बार्क्ड एट मी, यानी बार्क्ड सेकंड फॉर्म में मैंने उसको कहा। ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। और थर्ड फॉर्म हम वाज़ेह तौर पे वहाँ कहते हैं जहाँ कोई काम कंप्लीट करवाना हो, जैसे वो सेब खा चुका था, हम आ चुके थे, या हम आ चुके हैं। फिर भी हमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, लेकिन आ चुके हैं के लिए हैव, और आ चुके थे के लिए हैड। अब यहाँ पे आपको गाहे बगाहे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। बेशतर को आते भी हैं, सब्जेक्ट की एक लिस्ट तैयार कर लें अपने माइंड में। जब भी सब्जेक्ट का लफ्ज़ आए आपके जहन में आ जाने चाहिए आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। क्या? I, we, you, they, he, she, it, name. ओके। आई हैव ईटन, वी ईट, यू ईट, दे ईट, ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स, अली ईट्स। और ये फ़िक्रे के शुरू में ही इस्तेमाल होते हैं। दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेशतर सिर्फ़ और सिर्फ यही हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। बात क्लियर? जी सर। ओके। अब आपको सब्जेक्ट का पता चला, वर्ब का भी पता चला, लेकिन ऑब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब दो अल्फाज हैं। कितने हैं? दो, यानी फाइल और फेल। आई एज अ सब्जेक्ट, गो एज अ वर्ब। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो कुछ भी हो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट होता है। चाहे वो जितनी लेंथ में हो, कोई डे हो, टाइम हो, प्लेस हो, पर्सन हो, व्हाटएवर इट इज़, बट इट इज़ आफ्टर द वर्ब, उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। यानी फाइल और फेल के बाद जो कुछ भी बचता है वो दरअसल मफूल ही कहलाता है। द एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, द लेफ्ट ओवर ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट कहलाता है। आई गो टू स्कूल, इसमें स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। आई गो स्कूल विद माई फ्रेंड्स, इसमें स्कूल विद माई फ्रेंड्स इज़ एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज स्कूल भी एक ऑब्जेक्ट है। माई फ्रेंड्स यानी कोई मकसद भी हो, कोई टाइम हो, कोई डे हो, कोई पर्पस हो, यानी पर्पस क्या है? स्टडी, तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नाउ लेट्स रीड सम सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई गो स्कूल विद माई फ्रेंड्स, स्कूल विद माई फ्रेंड्स क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। आई गो टू स्कूल एट 7 विद माई फ्रेंड्स, इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट है, एज अ बिल्डिंग टाइम ऑब्जेक्ट है 7 o'clock, विद माई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है पर्सन। आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स ऑन मंडे, इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट, फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट, और मंडे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डे आ रहा है, डे भी ऑब्जेक्ट है। यानी आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को इग्नोर कर दें तो क्या क्या रह जाता है? जो कुछ भी रह जाए, डे यानी मंडे, टाइम यानी 7 o'clock, प्लेस यानी स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, होम, व्हाटएवर, पर्सन हो जैसे फ्रेंड्स, पीपल, मदर, फादर, कोई भी नेम हो वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा लास्ट पे। पर्पस हो जैसे फॉर स्टडिंग, फॉर वर्क, फॉर स्विमिंग, यानी एक पर्पस होता है किस मकसद के लिए, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। यहाँ पे आई भी आ सकता है, वी भी, यू, दे, ही, शी, इट, या कोई नाम शुरू में आ सकता है, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहलाएगा। और उसके बाद वो जो कुछ भी कर रहा था वो वर्ब ही होती है। इंग्लिश में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब आता है, जैसे आई गो, ही गोज़, शी गोज़, अली गोज़, दे गो, वी गो, वो क्या है? वर्ब है। और वर्ब की पहली हालत में हो तो वो आपको वो ज़माना बताएंगी जो उसकी पहली हालत वाला होता है। सेकंड हालत हो तो उससे वो पता चलेगा कि दूसरा ज़माना है। तो इंग्लिश के टेंसेस जो हैं वो वर्ब्स के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। लेट्स मूव हियर टू फाइंड सम सब्जेक्ट्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट्स। आई वेंट टू स्कूल, इसमें से ऑब्जेक्ट कौन सा है? टू स्कूल। ओके। दे हैड ईटन फूड, इसमें वर्ब कौन सा है?
eaten, ईटन, ईटन वर्ब है, तो ये कौन सा है? थर्ड है। third form. इससे क्या मीनिंग बनाएंगे आप? वो खाना खा चुके थे. ओके, खा चुके, चुके हो गया। तो जी. थे से कैसे पता चला? आपने थे क्यों बोला, है क्यों नहीं बोला? Had की वजह से. हैड की वजह से। अगर लिखा होता है दे हैव ईटन फूड तो फिर चुके हैं. चुके हैं। दैट्स ग्रेट। शी विस्पर्ड इन माई ईयर्स। In my ears object है. विस्पर्ड क्या है? ये verb वर्ब। और ये second form. सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, विस्पर्ड विस्पर्ड। तो आपको कैसे पता चला ये सेकंड है? क्योंकि इसमें has, have और had का इस्तेमाल नहीं है. एब्सोल्युटली, आई सेकंड विद यू कि इसमें हैव हैज़ हैड नहीं है। जब भी थर्ड फॉर्म होगी तो वो हैव हैज़ हैड होगी, अदरवाइज वो सेकंड फॉर्म होगी। क्योंकि बेशतर फॉर्म सेकंड और थर्ड सेम टू सेम होती हैं, जो ईडी वाली होती हैं। विस्पर का मतलब क्या होता है? सरगोशी करना, कान में बोलना, आहिस्ता बोलना, ठीक है। तो विस्पर फर्स्ट फॉर्म, विस्पर्ड विस्पर्ड, तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म। हमें कैसे पता चला कि ये सेकंड फॉर्म है? कि इसका मतलब बना कि उसने मेरे कान में सरगोशी की, क्योंकि यहाँ पे हैव हैज़ हैड नहीं है। और हमें इसलिए पता चला सेकंड फॉर्म जो है वो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आती है। यहाँ पे दरमियान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, ना हैव लिखा होता है, ना हैज़ लिखा होता है, ना इज़ एम और ना वाज वर्ड। ओके, अली आस्क्ड हर टू गो आउट। इसमें गो आउट एक पर्पज़ है, उसने उसको बाहर जाने का कहा। इसमें हर ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। हर का मतलब क्या है? उस लड़की को। यहाँ पे कुछ प्रोनाउन हैं जो आपको याद दिलाने के लिए एक टेबल बना लीजिएगा। आई माई मी, वी अवर अस, यू योर यू, दे देयर देम, ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट, हु हुज होम। आई मैं, माई मेरा, मी मुझे, वी हम, आवर हमारा, अस हमें, यू तुम, योर तुम्हारा, यू तुम्हें, दे वो यानी ज़्यादा, वो ज़्यादा, देयर उनका, देम उन्हें यानी उनको, ही वो, हिज उसका, हिम उसको, शी वो लड़की, ये वाला हर उसका और ये हर उसको, इट ये यानी कोई जानवर हो, छोटा बच्चा हो, कोई पौधा हो, इट्स इसका, इट उसे, हु कौन, हुज किसका, होम किसको। ऑलराइट, जी सर. होपफुली आपको ये याद होंगे। यस ये आपको याद है. ऑलराइट, ये आपको इसी तरतीब में याद करने हैं। जी आमना, ये प्रोनाउन थे। अगर आप इस प्रोनाउन का टेस्ट देना चाहती हैं तो आप इस वेबसाइट में आ सकती हैं, EnglishEA.com, EnglishEA.com। यहाँ पे आप सर्च कर सकती हैं प्रोनाउन को सर्च किया, एज अ रिज़ल्ट आपको प्रोनाउन आता है, उसका टेस्ट आ जाता है प्रोनाउन के तौर पे। इफ़ यू राइट प्रोनाउन, ये आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। इस तरह से आप इसका पक्का करने के लिए किसी शब्द को, यानी इसमें से आपसे पूछा जाता है ये कुत्ता किसका, इसमें से आपको प्रोनाउन इसमें से कौन सा है, कि किसका आप हु कहेंगी या हुज़ कहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हुज़ कह लेती हैं, फिर आप नेक्स्ट में इसमें से प्रोनाउन कौन सा है, इज़ समबॉडी प्रोनाउन, इसमें से समबॉडी प्रोनाउन है या प्रोनाउन है, तो आप समबॉडी पे क्लिक करते हैं। इसमें से नाउन कौन सा है, कदीर इज़ आवर स्कूल प्रिंसिपल नाउन है या कदीर प्रोनाउन नाउन है। तो इसमें मैं ऑफ कोर्स नाम को ज़्यादा तरजीह दूंगा कि नाउन होता है।
तो ये आप टेस्ट जो है वो हल कर सकती हैं। आफ्टर द टेस्ट आप जब मुकम्मल करती हैं, फिनिश पे क्लिक करती हैं, आपका रिज़ल्ट शो होता है कि आपके ये क्वेश्चन ठीक थे, ये रॉन्ग थे और राइट। तो अगर आपको ये सबक ना आए, यानी अगर आपके मार्क्स कम आते, तो आप इस क्लिक करती हैं इस पर, तो आपको ये पूरा प्रोनाउन का लेसन मिलता है जो आपके लिए बनाया जाता है। ऑलराइट, हैव यू गॉट थ्रू दिस व्हाट आई सेड टू यू? Yes, sir. इससे पहले कि हम इंग्लिश टेंसेस की तरफ बढ़ें, हमारे लिए टेंसेस का एक कैप्सूल इंट्रो ज़रूरी होता है। क्या ज़रूरी होता है? उनका इंट्रो। या इंट्रो शॉर्ट में जो हमें सिनॉप्सिस में इंट्रो याद करना है, वो कुछ इस तरह से है कि स्टोरी इसमें सेम टू सेम है, सारा सीन जो है वो सेम है कि ये दे लिखा हुआ है, ये भी दे लिखा हुआ है, ये भी दे है। इवन कि आप यहाँ पे आई वी यू दे लिख सकती हैं, और मैंने एक ही चीज़ का इस्तेमाल किया है, एक ही फ़िक्रे की नेचर को पूरे 12 टेंसेस में घुमाया है। मगर एक चीज़ हमें अखज़ हो रही है कि सब्जेक्ट हर ज़माने में एक नाम एक ही हालत में लिखा जाएगा कि दे को दे ही कहेंगे, मगर वर्ड चेंज होती रहेगी। वो जाते हैं, वो गए थे, वो जा चुके। देखें, आप उर्दू में भी देख सकते हैं कि वो लिखा हुआ है, वो। तो आपको जो चीज़ एक दफ़ा याद करनी है वो आपके लिए है दे, यानी सब्जेक्ट। आई वी यू दे ही शी इट नाम आप जिस ज़माने में भी लिखेंगे वो उसी हालत में ही लिखी जाएगी। चेंज क्या हो रहा है? वर्ब, उसकी फॉर्म चेंज हो रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी से कि अगर मैं उर्दू में कहना चाहूँ वो जाते हैं, सो व्हाट वुड यू से? दे गो। और अगर मैं कहूँ वो गए थे, They went. दे वेंट। वो जा चुके थे, वो They जा have gone. वो जा चुके हैं, दे हैव गॉन। यहाँ पे आई पहली फॉर्म, वो जाते हैं। वो गए थे, सेकंड फॉर्म। वो जा चुके हैं, थर्ड फॉर्म। और अगर मैं फ्यूचर में इस बात को घुमाऊँ कि वो जाएंगे, सो मैं विल शैल का सहारा लूँगा। जैसे दे विल गो, वो जाएंगे। वो जा रहे थे, दे वर गोइंग। वो जा चुके थे, दे हैड गॉन, They had gone. दे हैड गॉन। लेकिन अब यहाँ पे इन दोनों को मुआवजा कर लीजिए कि यहाँ भी गॉन लिखा हुआ है, यहाँ भी गॉन लिखा हुआ है। तो हमें इन दोनों का उर्दू में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है फ़िक्रे में? वो जा चुके हैं, वो जा चुके थे। तो इंग्लिश में भी हैं और थे की फ़र्क जो है वो हैड और हैव और हैड से नज़र आया। दे हैव गॉन, दे हैड गॉन। और अगर हम इसको कहें कि वो जा चुके होंगे, सो दे विल हैव गॉन। तो ये एक एक टेंस है, पर आपको जो चार्ट मिल रहा है ये पर टेंस है। ये अगर 9 है तो आपको ये 9 टेंसेस करने होंगे, इनके फार्मूलाज हैं। ये सेंटेंसेस से पता चल रहा है कि क्या है। तो हम हर रोज़ एक टेंस भी क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट, Yes, sir. यहाँ पे फ़िक्रे की बढ़ोतरी, फ़िक्रा बदलता कैसे है वो थोड़ा सा आपको वाज़े करता चलूँ आमना, बट आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा। पहला लफ्ज़ है मैं, आई। मैं हूँ, आई एम। मैं इमरान हूँ, आई एम इमरान। और यहाँ पे मैंने चेंजेस लेके आया, मैं मेहनती हूँ, यानी इमरान की जगह पे मैंने मेहनती लिख दिया। तो यहाँ पे इमरान की जगह पे इंग्लिश में भी हार्ड वर्किंग आ गया। ऑलराइट, ये फ़िक्रा जो है इस तरह से। इसी तरह मैं, तुम, वो। मैं आई, तुम यू, वो ही हो, शी हो या दे हो। बात क्लियर है? Yes. ओके, आपको चार्ट 1 दिया जाता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का आज के लिए। चार्ट 1 में आपके लिए कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। अनाउंस, ऐलान करना। अरेस्ट, गिरफ्तार करना। अनॉय, गुस्सा दिलाना। अराइव, पहुंचना। आंसर, जवाब देना। असेंड, चढ़ना। अराइव, अरेंज, तरतीब देना, इंतज़ाम करना। ऑक्शन, नीलाम करना। एम, मकसद होना। बार्क, भौंकना।
अम्यूज़ लुत्फ़ उठाना, बियर बर्दाश्त करना। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, एफ़ी इफ़ यू वांट PDF, you can visit this website englishye.com. You can browse, scroll down and here we go, English की फार्म। इस पे क्लिक कीजिएगा और ये रही फार्म्स। ये आप इसको PDF के तौर पे डाउनलोड कर सकती हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपने अगर इन सब को सुना, ये 600 फार्म्स हैं, ये वर्ब्स 600 हैं और इनकी अगर फार्म्स को किया जाए तो 50 से ज़रूर दे लीजिए, तो ये 600 वर्ब्स हैं। ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6, और ये आपको इस तरह से भी मिल सकती हैं इस वेबसाइट में अगर आप इसको विज़िट करती हैं। ऑलराइट, यस सर। ये आपको इस तरह से भी मिल सकती हैं। PDF में लेना है तो आपको PDF पे क्लिक करना होगा यहाँ पर। सेकंडली आपको यहाँ से वीडियो चला के सुनना है तो वीडियो चला के भी सुन सकते हैं। बात क्लियर? यस। तो ये आपको फॉर्म पहला चार्ट लाजमी याद करना है ताकि हम हर रोज़ इतनी करते रहें। अभी आपको थोड़ा सा बी के बारे में प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। बी एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है होना। क्या? होना। और ये हम आज बी का पढ़ रहे हैं, कल हम पढ़ेंगे हैव हैज़ हैड का, फिर हम पढ़ेंगे विल शैल का, फिर हम पढ़ेंगे विल हैव शैल हैव, विल बी शैल बी। तो ये हम हेल्पिंग वर्ब्स, मोरल वर्ब्स, ये सारी साथ साथ लेके चलेंगे। तो आज के हमने जो आखिरी बात हमने पढ़नी है वो है बी। बी एक वो ग्रुप है जिससे निकला इज़, एम, आर, वास, वर। बी का क्या मतलब है? होना, कुछ भी होना। जैसे मैं हूँ, इसमें मैं हुआ हूँ ना, तुम हो, तुम भी तो हुए हो, होना, तुम्हारा होना, तुम हो, उसका होना वो है, तो वो बी होता है। क्या होता है? बी। बी का ग्रुप क्या है? इज़ है, एम हूँ, वास था। तो जैसे मैं सब्जेक्ट बोलता हूँ, आपके जहन में क्या आता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। क्या आता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। जब मैं सब्जेक्ट का जिक्र करता हूँ आपके जहन में क्या आता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। अगर मैं बी का जिक्र करूँ किसी फार्मूला में, सिर्फ बी कहूँ, आपके जहन में आ जाना चाहिए इज़, एम, आर, वाज, वर। क्या? इज, एम, आर, वाज, वर। ऑलराइट। और अगर मैं कहूँ आई बी हैप्पी, तो आप उसको सीधे अल्फाज में कैसे लिखेंगी? आई एम हैप्पी। ओके। और मैं कहूँ इन द पास्ट आई बी हैप्पी, तो उसका आप सीधा सीधा क्या लिखेंगी? आई वाज हैप्पी। ओके। आई एम हैप्पी टू सी यू, आई वॉज हैप्पी टू टॉक टू यू, आई वॉज हियर, ही वॉज हियर, दे वर हियर। इसमें एम वाज, वाज, वर, ये क्या है? बी हैं। बी। ऑलराइट, बात क्लियर? तो Yes, चलिए sir. हम इसको एग्जाम्पल में लेके आते हैं सब सब्जेक्ट्स के साथ। किन के साथ? सब सब्जेक्ट के साथ। ओके, सबसे पहले हम आई के साथ करते हैं। मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट। ऑलराइट। वो ठीक है, वो लड़का ठीक है। ही इज ऑल राइट। हाँ, ही के लिए क्या आएगा? इज। वो लड़की ठीक है। शी इज ऑल राइट। वो ठीक हैं, वो ज़्यादा हैं। दे आर ऑल राइट। दे आर ऑलराइट। वो ठीक थे। दे वर ऑल राइट। तो ये क्या था? मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट। वो ठीक है, ही इज़ ऑल राइट। वो ठीक है, दे आर ऑल राइट। सिमिलरली मैं बिस्तर पर हूँ, आई एम ऑन बेड। वो बिस्तर पर है, तो फिर आप क्या कहेंगी? ही इज ऑन बेड। वो ज़्यादा हैं तो वो बिस्तर पर हैं। दे आर ऑन बेड। दे आर ऑन बेड। ओके। मैं हूँ ऑन बेड, गोना स्लीप। मैं बिस्तर पर सोने जा रहा हूँ। मैं बिस्तर पर सोने लगा हूँ, सोने लगा हूँ। वो बिस्तर पर सोने लगा है तो ही इज़ ऑन बेड, गोना स्लीप। अच्छा, मुझे डर है,
मुझे I am afraid. आई एम अफ्रेड, उसे डर है। He is afraid. उनको डर है। They are afraid. दे आर अफ्रेड। उस लड़की को डर है। He is afraid. लड़की। She is afraid. ओके। मुझे आपका डर है। I am afraid of you. उनको आपका डर है। They are afraid of you. दे आर अफ्रेड ऑफ यू। हमें आपका डर है। We are afraid of you. वी आर अफ्रेड ऑफ यू। दैट्स ऑलराइट। हमें डर है आपका कि आपको देर हो जाएगी। I am afraid you will be late. आई एम अफ्रेड यू विल बी लेट। देखिए, आई एम अफ्रेड मुझे डर है। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, हमें आपका डर है। आई एम अफ्रेड ऑफ यू विल बी लेट, कि आप लेट हो जाएंगे, आपको देर हो जाएगी। फ़िक्रा किस तरह से बढ़ गया, सिर्फ एक एक चीज़ के इजाफे से बढ़ा। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, हमें आपका डर है। आई एम अफ्रेड यू विल बी लेट, कि आपको देर हो जाएगी। फ़िक्रा कहाँ से शुरू हुआ था? आई एम अफ्रेड से। बात समझ में आ गई? जी सर। ओके। हमें डर है कि आप नहीं जीत पाएंगे। I am afraid you will not win. आई एम अफ्रेड यू विल नॉट विन, ये भी वही चीज़। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आई एम अफ्रेड यू विल नॉट विन। हमें डर है आप गिर जाएंगे। I am afraid you fall down. आप गिर जाएंगे। यू फॉल डाउन या यू विल फॉल डाउन। आप गिर जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर है तो हमें विल का इस्तेमाल करना होगा। हमें डर है कि आप बीमार पड़ जाएंगे। I am afraid you fall sick. You मुझे will fall sick. मुझे डर है कि आप बीमार पड़ जाएंगे। हमें डर है, इसमें अगर मैं कहूँ हमें डर है तो आप क्या चेंज करेंगी? We are We. afraid you will. दैट्स राइट, ये तो बात सही कही आपने। एफी आप कितनी इंटेलिजेंट हैं, बताइए। आई एम अफ्रेड यू विल कैच कोल्ड। हो जाएगा। सर इसमें कैच का वर्ड क्यों यूज होगा? कैच कोल्ड यानी कि हो जाना। कैच, गेट, हैव, फील, ये एक ही चीज़ होती है। किसी चीज़ को हासिल करना, लेना, असर में अपना लेना, हो जाना, पकड़ लेना, ठंड पकड़ लेना। हमें डर है कि एफी को क्या हो जाएगा? ठंड लग जाएगी। बाय द वे, एफी इज़ नेम ऑफ माई कैट, और आपका हमने सेकंड नेम क्या किया? एफी। ओके। ओके। आई एम अफ्रेड यू विल कैच कोल्ड। और अगर मैं कहूँ हमें डर है कि एफी को ठंड लग जाएगी, तो आप क्या चेंज करेंगी? We are afraid. वी आर Afraid. Effie will अफ्रेड। catch cold. वी आर अफ्रेड एफी विल कैच कोल्ड। ऑलराइट, तो ये हमारे ये सेंटेंसेस है। कल हम इन्हीं सेंटेंसेस की ब्रेक से शुरू करेंगे, और फिर हम कल जो मज़ीद करना चाहते हैं एक्टिविटी, वो होगी मज़ीद पर हाँ, हैव, हैज़, हैड। क्या? Have, has, and had. हैज़, हैड, दैट्स इट। कि जिसमें हम आपको बताएंगे कोई चीज़ किसी के पास होना, किसी के पास ये दो किस्म के आपको बताए जाएंगे
कि कोई चीज़ की मलकियत होना और या फिर कोई काम मुकम्मल हो जाना। यानी एक तो हम टेंस करेंगे तीनों इसी से, और साथ ही हम इसी से ये करेंगे कि कोई चीज़ का मालिक होना। और याद रखिएगा ये, अगर इसमें से हम 3 टेंसेस करते हैं तो जब हम टेंसेस करेंगे अलग से, हमने अलग से टेंसेस भी करने, तो तब हमें और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो कोशिश है कि अल्लाह ताला हमारे हर काम को आसान फरमाए। सो एफ़ी, it was nice to talk to you. It was really nice to have class with you. Inshallah, tomorrow with the same time we'll have class. Have a good time. Stay happy. Allah Hafiz. Allah Hafiz.